Hello children, how are you all of you? Today I am not in the front of you. The reason is that if I will front of you, then definitely this entire creation will be covered up and it become very difficult to explain you each and every aspect. So due to that reason, I am back of the camera and I will explain you the two concepts which I earlier told you. First is the holozoic nutrition in amoeba. Okay. And second one, the human digestive system. These two things we will try to understand today. And this is our main topic. So how holozoic nutrition is taken place in amoeba? Let's talk about it. उसके बारे में बात करते हैं. You can see the picture here. Okay, I am showing you. Just you can see this one. Here I have written holozoic nutrition in amoeba, and these 4 steps of holozoic nutrition are there, which I am going to explain you one by one. So we know very well that amoeba is a unicellular organism. It is a unicellular organism, means the unicellular animal, and it shows the holozoic nutrition. Okay, see, it utilizes other microscopic animals and plant as its food. First thing is that it is so minute that you are not able to see it by eyes. So you can just imagine how small its food will be. जब ये खुद इतना छोटा है तो इसका खाना कितना छोटा होगा. तो definitely microscopic organisms and small food particles, he take it as a food. It inject food particles by the mode called the phagocytosis. Okay, for injection of food, the amoeba produce pseudopia around the food particle and wrapped it completely. As you can see here, children, आप ये पहले पिक्चर में आप देख पा रहे होगे, फूड यहाँ पर है, अमीबा इधर है, और वो जो है फूड की तरफ धीरे धीरे खिसक रहा है और उसने अपने आप को कुछ इस तरह से एक्सटेंड किया है. दिस इज कॉल्ड फॉल्स लैग, दैट इज द सुडोपिया. ओके, उसकी मदद से वो फूड को दोनों तरफ से कैप्चर करता है, कैप्चर द फूड, and then the protoplasmic membrane at the tip of the pseudopia dissolve and so the food particles along with the thin layer of water get entry into the cytoplasm. You know very well, ये जो है सेल वॉल है, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, बराबर है, कोशिका भित्ति. तो इसके अंदर जो है एक वैक्यूल क्रिएट होता है और फूड जो है उसके अंदर जो है आ जाता है और जो ऐसा गैप हो रखा है, ये गैप यहां से ऐसे कवर हो जाता है. इज इट क्लियर? दिस फूड वैक्यूल comes in contact with the lysosomes. You know lysosomes is the internal part of the cell whose digestive enzyme digests the food particles fully or partially. The digested material mixed with the cytoplasm and utilize the phenomena is called the assimilation. So here the assimilation is taking place, यानी कि खाने का जो है सेल के अंदर मिल जाना, that is the assimilation. These undigested residual particle remain in the food vacuole and moves toward the body surface, and it come to contact with the cell membrane and cell break open and digested food come particles out of the body. After the assimilation, one more process is taken place, and with that whatever the undigested food is there, okay, it is come out from the vacuoles and throughout through the body. As a common contest with cell membrane, the latter break upon the digested and undigested particle out of the body. This process is called the agitation.
ओके, विच इज मेंशन हियर, फूड का बॉडी से बाहर निकालना, इजेक्शन। ओके, और इट इज अनदर वर्ड, इट इज कॉल्ड द defecation. It shows the holozoic nutrition through the intracellular digestion. The process such as digestion, assimilation, and agitation, and involve the type of nutrition. Okay, so four process are there, four steps are there, the digestion of food in amoeba. Now after this we will try to understand the human digestive system. हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, यहां पे अगर आप देखो इस साइड में, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड दैट इज द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है इसमें? सबसे पहले ऊपर देखो, इट इज माउथ इज गिवन, देन pharynx, then esophagus, then stomach, then small intestine, large intestine, rectum. अब आपको अगर ये लर्न करना हो तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसको, पोमोज लर्स, PMOS, पोमोज LRS, लर्स, पोमोज लर्स। सो P4 क्या हुआ यहां पे? pharynx, M4 क्या हुआ? माउथ, O4 क्या हुआ? एसोफेगस, S4 क्या हुआ? स्टमक। ओके, फिर R4 क्या हुआ? रेक्टम, L4 क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन, और S4 क्या हुआ? S4 हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, लाइक दैट वे you can learn it. So just keep the formula in your mind. Pomos lurs, POMOSLRS, pomos lurs. Is it clear? So this is the main. Now with this, some associatory glands are also there, digestive glands are, that is the salivary glands, liver and pancreas. अब हम इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिस वन इज द माउथ, यू कैन सी हियर, ये जो है माउथ है। ओके, माउथ से जो है यहाँ पे देखो सलाइवरी ग्लैंड ये है जुड़ा हुआ है। माउथ का जो अंदर का पार्ट है जिसमें टंग आ जाता है, जिसमें टीथ आ जाते हैं, बराबर, वो पूरे के पूरे पार्ट को बकल कैविटी बोलते हैं, बराबर है। और बकल कैविटी जो है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह के साथ एसोसिएट होता है, और उसके साथ में वहां से उसकी स्टार्टिंग ये फूड पाइप से होती है, विच इज नोन एज द एसोफेगस। इसको एसोफेगस बोलते हैं। अब ये एसोफेगस जो है, ये जो है स्टमक में जाके ओपन होता है। ये बड़ा सा जो बेली पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द स्टमक। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जे शेप में होता है। एंड ये जो आप ऊपर ये ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी हार्ट और लंग से अलग करता है, एंड दिस इज कॉल्ड द डायफ्राम। ये एक बहुत पतली झिल्ली होती है जो स्टमक वगैरह को जो है डाइजेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी लंग्स और हार्ट, इन दोनों से जो है इन दोनों को अलग करता है। दैट इज द थिंग। ओके, और दिस इज, इसका ये जो सी शेप पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने का काम करता है, जो यहां से देखो इधर आ रहा है ये, और ये जो है इस तरह से ज्वाइंट होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड, इसको हिंदी में आत्रपुच्छ बोलते हैं, और इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। इट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। ओके, और फिर यहां से इस तरह से स्टार्ट होता है, ये पूरा पार्ट है, और ये, एंड दिस इज द रेक्टम, और रेक्टम के नीचे दिस इज द एनस, एंड लाइक दैट वे ये पूरा का पूरा मेन पार्ट है, विच आई एक्सप्लेन यू हियर। ओके, एंड एसोसिएटरी ग्लैंड के अंदर सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज मेंशन हियर। ओके, सेकंड इज योर लीवर, ये जो आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है,
बराबर है ये। और इसके साथ में जो है यहाँ पे और भी दूसरे एसोसिएटरी ग्लैंड के उसके लीवर के पार्ट है, जैसे कि गॉल ब्लैडर वगैरह, जिसको आप पित्ताशय, पित्तनी कोथड़ी आप बोलते हो। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द पैनक्रियाज, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। दिस मच are the associatory part and that are the main part. First thing is that now how digestion is taken place. ओके, मैं इन सबको वन बाय वन आपको रीड करके एक्सप्लेन करता हूं। अब आपको ध्यान देना है कहां पे कौन सी चीज है। ओके, सो यू विल गेट इट सिस्टमेटिकली, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट माउथ से शुरुआत करते हैं। माउथ आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू वेयर इट इज। So the alimentary canal begin with the mouth. It is a special organ for injection of food. There are the teeth in the jaw. आपका जो जबड़ा होता है उसमें जो है दांत होते हैं, और 4 टाइप के दांत होते हैं, और चारों के दांतों का काम अलग अलग है, बराबर है। वो च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको और जबरदस्त तरीके से और बारीक करने का काम करते हैं, और चीरने फाड़ने का काम करते हैं, कैनाइन टीथ। तो इस तरह से उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। देयर आर द टीथ इन अ जॉ, अ मस्कुलर टंग, और टंग का भी अपना एक काम है। टंग 2 काम करती है, फूड को इधर उधर मूव ऑन करने का काम करती है, एट द सेम टाइम टेस्ट आपको मालूम पड़े उसके लिए भी फंक्शन करती है। द टीथ आर यूजफुल फॉर कटिंग, चूइंग, ग्राइंडिंग द सॉलिड फूड कंपोनेंट्स। The tongue's tongue the move the food in the mouth and mix with saliva from the salivary gland. Salivary gland से जो भी लिक्विड निकल कर आता है, एंजाइम्स निकल कर आते हैं, वो फूड में मिक्स होते हैं और फूड को सॉफ्ट करने का काम वो मुंह के अंदर किया जाता है। इट इज डन इन द बकल कैविटी। नेक्स्ट इज द पायरेक्स। सो द पोस्ट स्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ, यानी कि आपके गले के ऊपर का पार्ट और गले से को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है, इज कॉल्ड द पायरेक्स। इट ओपन इन द एसोफेगस एंड लेरेंस, दिस साउंड बॉक्स, एंड ओपन इन पायरेक्स। फिर उसके बाद में जो आपको मैंने पिंक कलर का एक लंबा फूड पाइप दिखाया, दैट इज द एसोफेगस। एसोफेगस इज अ ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम द बिहाइंड द पायरेक्स, बिलो द नेक, passes through the thyroid region and diaphragm to open the stomach and transport food from the mouth to stomach. वो जो है फूड पाइप का काम है, उसके अलावा और दूसरा कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट इज द स्टमक, जो आप बेली शेप में, सर्कुलर शेप में, आप यहाँ पे ये जे शेप में ये जो देख रहे हो, दिस इज द स्टमक। इट इज अ लार्ज, more or less J-shaped muscular sac-like structure located on the upper left side of the abdomen cavity. मतलब स्टमक के ऊपर के पार्ट में थोड़ा सा होता है। Its inner inning, that is the mucosa, consists the large number of tubular glands called gastric glands. इसमें जो है अलग अलग टाइप के glands होते हैं जो अलग अलग juice secrete करते हैं। उसमें से gastric juice होता है, which together secrete the gastric juice. The post exterior end of the stomach is earlier part of the small intestine, that is the duodenum. ये जो आपको C शेप में स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को इसको बैक पार्ट से ज्वाइन कर रहा है, ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पीछे से आ रहा है। That C शेप स्ट्रक्चर is called the duodenum, उसको duodenum बोलते हैं। अब ये duodenum क्या काम करता है अभी मैं बताऊंगा आपको आगे, I will tell you that. Okay, duodenum and the opening in the guarded by the sphincter muscles. फिर है उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मिडल पार्ट में आप देख रहे हो, ये दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर से आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट मैन। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे बॉडी का ही जो है क्या कहते हैं कितना गुना ज्यादा होगा क्या कहते हैं। It is the narrowest tubular organ of the alimentary canal and comprised of earliest part of duodenum. The long middle part of the part is called the jejunum. ये जो आपको बीच में दिख रहा है इसको जो है jejunum बोलते हैं, ये okay. And the longer hidden part is ileum and ileum open in large intestine. ये large intestine देखो यहाँ पे ये joint हो रहा है। Liver and pancreas are the digestive gland which
which bile and pancreatic juice respectively and poured in duodenum. ये देखो यहाँ पे मैंने देखा, आप लोग देख रहे होंगे, ये जो सी शेप duodenum है, यहीं पर देखो आपका जो है ये जो लीवर है, इसके अंदर जो गॉल ब्लैडर है और यहाँ से जो है जो पैनक्रियाज है, दोनों इधर ही ओपन होते हैं, यही जगह पे, क्योंकि यहीं से जो है आगे का जो डाइजेशन, जो इसमें से जो जूस निकलते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं. By a common apparatus, the inner lining of the small intestine process the intestinal gland and secrete the juice is called the intestinal juice. तो उसमें भी जो है intestinal juice small intestine में produce होते हैं. The inner lining of the small intestine is projected toward the lumen. A very large number of Frankel-like process is called villi. इसके अंदर अब मुझे आपके फ्रंट में आना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे आपको सेपरेटली बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. अब यहाँ पे मैं दिखा भी नहीं सकता था. अब अगर इंटेस्टाइन ऐसा है बच्चों, तो इसके अंदर ऐसे शेप में स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे अंदर, ये ऐसे, एंड दिस इज कॉल्ड अ विली. अब ये विली के दो फंक्शन है. पहले तो फूड ऑब्जर्व करने का काम करता है और दूसरा फूड को आगे धकेलने का काम करता है. दिस टू थिंग्स आर डन बाय दिस विली. ये विली दो काम करता है बच्चों. द विली आर द great importance as they greatly increased the surface area of absorption or digestion food. फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आप यहां से देख रहे हो, ये पूरा ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हो, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज रिलेटिवली थिन वॉल्ड and wider in diameter, about 1.5 meter in length. It absorbs water and useful mineral salt from the undigested food remains and residual content from phases. बराबर है. यहाँ से जो बाकी का बचता है वो मल बन जाता है, बराबर है, और वो मल जो है रेक्टम में, दिस इज कॉल्ड द मलाशय, यहाँ पर इकट्ठा होता है और फिर बॉडी में जब सेंसेशन क्रिएट होते हैं तो एनएस के थ्रू वो जो है फेजेस यानी कि मल बाहर फेंक दिया जाता है. सो रेक्टम इज द पोस्ट एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ये इसका सबसे अंतिम भाग है, पोस्ट एक्सटीरियर पार्ट है. लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर द फेसिकल मैटर कॉल्ड द फेसेस, जिसको हम लोग मल बोलते हैं. ओके. द रेक्टम ओपन एक्सटेंडली द एनस, दिस स्मॉल पार्ट इज द एनस, जिसको हम लोग हिंदी में गुदा द्वार बोलते हैं, बराबर है, मल द्वार बोलते हैं. which is face the discharge out the body, और सेंसेशन के थ्रू बॉडी से बाहर फूड फेंक दिया जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड फेंक दिया जाता है. इसके अलावा आप लोगों को एसोसिएटरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. इसमें सबसे पहले मैंने ऊपर बता दिया था सलाइवरी ग्लैंड, इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं. देयर आर द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एसोसिएटेड विद द माउथ. स्लिमी मतलब थोड़ा चिकनाहट वाला, watery saliva secreted from the salivary gland and moist the food को एकदम soft बनाने का काम करता है in the mouth and make the slimy and being partable and start the digestion of food, और food को digest का काम करता है. Next is your liver, जो आपको ये पार्ट में दिख रहा है. मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान है, आपको इस पिक्चर की खुद भी घर में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में ये 4 मार्क का ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता है कि भाई एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आपको ये समझाना आना चाहिए. सो दैट इज द लीवर. सो स्लाइटली ऑन द अपर साइड ऑफ द स्टमक, स्टमक के देखो ऊपर के पार्ट में, इस साइड में, it is upper right part of the abdomen cavity. There lies the large gland called the liver. It secretes the greenish yellow alkaline. अब बराबर है, यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बराबर, और इसमें से अल्कलाइन मटेरियल पित्त, बराबर है, गॉल ब्लैडर में से प्रोड्यूस होता है, और वो जो है फूड के अंदर की एसिडिक असर को खत्म कर देता है. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे जो है अभी सिर्फ लीवर के बारे में बता रहा हूं. So secrete the greenish yellowish alkaline fluid is called bile, which is stored in the
अबोलेंस सेक इज कॉल्ड अ गॉल ब्लैडर, और उसमें से जो बिली है उसको पित्त बोलते हैं। एंड वो जो है गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में प्रोड्यूस होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ लीवर, जो लीवर का ही एक हिस्सा है। आप लोगों ने बहुत बार मार्क किया होगा, अगर आपको कभी वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है तो ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ कड़वाहट सी चीज आपके मुंह से जो है बाहर निकल के आ जाती है, दैट इज नथिंग, दैट इज द पित्त। आपने बहुत बार सुना भी होगा घर वालों से कि भाई यानी पित्त થઈ ગયું છે कहीं ने। ओके, सो दैट इज द पित्त। वो पित्त जो है फूड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। एसिडिक प्रॉपर्टी जो स्टमक में इकट्ठी हो गई थी बिकॉज ऑफ द माइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको जो है सब्सिडाइज करने का काम करता है। ओके, एंड देन उसके बाद में बाजू में इधर एक और एसोसिएटरी ग्लैंड है, दैट इज द पैनक्रियाज। अब बच्चों ये पैनक्रियाज क्या करता है, तो पैनक्रियाज जो है बच्चों उसके अंदर जो है एक केमिकल होता है, एक एंजाइम होता है, इट इज कॉल्ड द इंसुलिन। वो इंसुलिन क्या करता है, हमारे फूड में जो भी एक्सेस प्रपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में कर देता है और बॉडी सेल में स्टोर करके रख देता है। एंड व्हेनेवर जब भी हमको जरूरत पड़ती है, जिस दिन भी हमने ढंग से खाया नहीं होता है या भूख लगती है, तो उस समय में जो है वापस से जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी को एनर्जी मिलती है। खास करके तुमने देखा होगा जब उपवास वगैरह होता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम बराबर है हमको वीकनेस जल्दी से नहीं आती। उसका रीजन यही है कि वो ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और बॉडी को एनर्जी देता है। तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करता है। अब यहाँ पे एक चीज और अंडरस्टैंड करते हैं कि मान लो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देगी तो क्या होगा, तो डेफिनेटली जो एक्सेस प्रोपोर्शन में ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाएगा। अब ब्लड में रह जाएगा तो डेफिनेटली ब्लड जब सर्कुलेट होगा तो किडनी के थ्रू वो सब वैसे जो है ग्लूकोज को ये किया जाएगा, वहां पे क्लीन किया जाएगा और वो जो है फिर जो है हमारे यूरिनरी ब्लैडर से जो है वो जो है बॉडी के बाहर निकलेगा। एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड दैट डायबिटीज। ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। डायबिटीज शुगर खाने से नहीं होती है भैया, चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज इसलिए होती है कि हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन ढंग से प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसके प्रोड्यूस नहीं करने से जो है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं होता है। ग्लूकोज का अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं होगा तो वो ब्लड में मिक्स रहेगा। वो ब्लड जो है जब फिल्टर होगा किडनी में तो वो जो है एक्सेस जो ग्लूकोज है वो किडनी से जो है क्या कहते हैं फिल्टर होकर जो है हमारे यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज द इज कॉल्ड द डायबिटीज। तो डायबिटीज ना हो उसके लिए क्या करने का, उसके लिए शुगर खाना नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज ना हो उसके लिए आपका इंसुलिन ढंग से काम करे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, उसका आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? अब उसके लिए क्या करना है, तो आपकी लाइफ प्रोसेस बराबर होनी चाहिए, यानी आपका खाना सोना आपके जो भी दूसरे रूटीन लाइफ है इट शुड बी इन बैलेंस। अगर वो इम्बैलेंस में रहेंगे, अगर आपको ज्यादा ओबेसिटी है, मोटापा है, बहुत ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट रहते हो, टेंशन लेते हो, बहुत ज्यादा आप लंबी नींद नहीं लेते हो जितनी जरूरत है, तो जो है आपके पैनक्रियाज खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो है ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी विच आई शेयर्ड विथ यू related to pancreas. So it is a U-shaped gap formed between the stomach and duodenum. ये देखो ये duodenum इधर है, stomach इधर है, इन दोनों के बीच में देखो ये मैंने greenish कलर का ये बनाया हुआ है, that is the pancreas. The pancreas is located, its secret pancreatic juice which is also poured in the duodenum. अब ये तो आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया बॉडी के अलग अलग पार्ट और कैसे फंक्शन करते हैं। अब डाइजेशन कैसे होता है और कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग खाते हैं तो उसमें जो है कार्बन भी होता है, उसमें फैट भी होता है, उसमें जो है प्रोटीन भी होता है, तो वो बॉडी के कौन कौन से पार्ट में कैसे सेपरेट होता है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द माउथ। अब हम लोग बोलेंगे भाई डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो भैया डाइजेशन जो है माउथ से ही शुरू होता है। माउथ इज द अल्टीमेट पार्ट वेयर डाइजेशन इज टेकन प्लेस, जहां पे जो है डाइजेशन होता है, बराबर है। तो डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट होने के बाद में वो जो है आगे की तरफ बढ़ता है और आगे उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। ओके,
तो ये आपको जो है देखना जरूरी रहेगा। अब हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, नाउ सी हाउ डाइजेशन इज टेकन प्लेस। So, digestion of food start as soon as the food is placed in the mouth. जैसे ही हमने मुंह पे खाना का कोर डालते हैं, इमीडिएटली जैसे उसे च्यू करना शुरू करते हैं, डाइजेशन उधर से ही शुरू हो जाता है। The food is chewed by the teeth in the mouth. During chewing, the saliva of the salivary gland mixed with the solid food and the tongue help the rolling the food and mixing the saliva in it. The saliva is slightly slimy, means थोड़ा चिकनाहट भरा होता है। watery fluid, it moisture and lubricate यानी soft बनाता है फूड को, the food and rendered it in the palatable and amylase ptyalin and enzyme. इसमें एक एंजाइम होता है, एक केमिकल होता है, its name is the ptyalin. Okay, and in the saliva and convert it starch, और वो जो है आपके फूड को स्टार्च में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसलिए आप लोगों ने कभी मार्क किया होगा, अगर आप अकेली कोरी रोटी, सूखी रोटी अगर आप खाओ और काफी देर तक उसे चबाओ तो थोड़ी देर के बाद में वो मीठी लगने लगती है। उसके मीठे लगने का पीछे रीजन यही है कि ये जो पेटलिन है, ये पेटलिन जो है क्या कहते हैं उसको ग्लूकोज में, शुगर में यानी स्टार्च में कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से वो मीठा लगता है। इट कन्वर्ट इनटू द डिसरेंट, तो स्टार्च यानी ग्लाइकोजन बराबर है एमिली की मदद से जो है वो मेलाटोज में जो है कन्वर्ट होता है। द फूड इज वेरी स्लाइटली डाइजेस्टेड। अब यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, स्लाइटली डाइजेशन होता है। सिर्फ वो फूड जो है ग्राइंड हो जाता है, मलिदा बन जाता है उसका। टाइम बिफोर वी swallowed, the food swallowed from the mouth passes through the pyrex esophagus to enter the stomach. अब फूड जो है यहाँ से पार्शली डाइजेस्ट होने के बाद में ये एसोफेगस की मदद से ये स्टमक में, ये इसके अंदर आ जाता है, ये स्टमक, ये स्टमक। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, द कॉन्सेंट्रेशन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द मस्कुलर ऑफ द स्टमक कॉज द चर्निंग द फूड मास। जिस तरह से आप गुजराती में कहें तो आपने माखण वलोवी है, सेम वे उसी तरह से जो है ये स्टमक जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सट्रैक्ट होता है, और अंदर जो है फूड जो है वलोवाय छे, वी कैन से इन गुजराती। चर्निंग द फूड mass which is broken into the smaller fragment and convert into a semi solid form. जो फूड अभी तक मुंह में थोड़ा सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पे जो है थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब इसमें क्या क्या मिक्स होता है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड in the muscular lining of the stomach secrete the gastric juice. अलग अलग gastric juice इसमें इकट्ठे होते हैं। At the same time this juice contain the water, म्यूकस एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीन चीजें इसमें मिक्स होती हैं। वाटर उसे थोड़ा पतला बनाने का काम करता है, म्यूकस जो है इसमें मिक्स हुआ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको ये स्टमक के यहाँ पे एक लेयर बना देता है ताकि जो है माइन्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके टिश्यू को डैमेज नहीं करे। कभी कभी आपने मार्क किया होगा कि आप जब स्पाइसी फूड ले लेते हो और जैसे ऊपर की तरफ जब कभी डकार आती है तो यहाँ पर जलन होने लगती है ये पार्ट में, और आप बोलते हो एसिडिटी हो गई। तो यहाँ वो ऐसी होता है कि अंदर पड़ा हुआ फूड के अंदर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ऊपर उछला मारता है तो यहाँ के टिश्यूज के साथ में वो टकराता है। अब यहाँ पे म्यूकस होता नहीं है जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं यहाँ पे जलन होती है और आप बोलते हो एसिडिटी हो गई। फिर उसको सब्सिडाइज करने के लिए आप क्या करते हो, अब एसिड है तो आप जो है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से सोडा पीते हो, बराबर है। सोडा क्या करता है, सोडा जो है उसको जो है सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देता है जिसकी वजह से आपको जो जलन होती है वो बंद हो जाती है। या फिर दूसरे टाइप के आप गैस्ट्रिक को कंट्रोल करने वाले जो है बाहर से मेडिसिन भी लेते हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है, पढ़ना जरा सब कुछ मैं बताऊंगा तो फिर आप लोग क्या पढ़ोगे, क्या नाम है उसका दिया हुआ है बुक के अंदर। I am not going to tell you. This juice contain the water, mucus and dilute hydrochloric acid and inactive enzymes pepsozone.
ये जो है एक एंजाइम इसमें प्रोड्यूस करता है। द म्यूकस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर on the mucosa and hereby protect the against the effect of dilute hydrochloric acid and pepsin on it। मैंने पहले ही बताया तुमको कि जो म्यूकस है वो इसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की असर आपके इंटेस्टाइन के टिश्यूज पर नहीं हो, उसको डैमेज ना करे, इसके लिए। फिर अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे फंक्शन करता है, वो क्या काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वहां पे, तो बोल रहे डिस्ट्रॉयड द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर द स्टमक अलोंग विद द फूड। उसको वहां पे खत्म कर देता ताकि आपको कोई फूड पॉइजन ना हो जाए, डैमेजिंग ना हो जाए बॉडी में। इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि अगर पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन है वो जो है ऑब्जर्व होंगे नहीं, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको जगाने के लिए, या यूं कहोगे पेप्सिन को भड़काने के लिए जो है उसका जो है प्रेजेंस होना पेट में, स्टमक में जरूरी है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इट कन्वर्ट द इनएक्टिव एंजाइम्स पेप्सिजिनॉन into active enzyme pepsin. Pepsin has digestive effect on protein of the food and acidic medium only. बराबर है। फिर insoluble mineral salt and dissolved in dilute HCl। फिर उसके बाद में डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है वो भी देखते हैं हम लोग। In small intestine the food is digested with the help of billy। बिली मतलब ये जो आपका लीवर है, बराबर है, इसके अंदर जो गॉल ब्लैडर था उसकी मदद से, उसमें से निकलने वाले जूस की मदद से। पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिली के बारे में बात करते हैं। बिली इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। All greenish yellow alkaline fluid, just earlier I told you, अभी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। From gallbladder, billy flows through the common billy duct and poured into the duodenum। यहाँ से जो है जो पित्ताशय में से जो है इसमें जो है एंट्री मारता है, पित्ताशय से यहाँ पे ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पर आके जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाता है। बिली कंटेन द अल्कलाइन बिली सॉल्ट विच, जिसको हम लोग मैंने अभी पित्त बताया, विच कन्वर्ट द एसिडिक फूड कॉन्सेंट्रेट कंटेन्स द स्टमक इनटू द अल्कलाइन। बराबर है, यानी उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। व्हेन दिस कंटेन आर poured in the duodenum, thus the billy provide the alkaline medium of the enzyme on the pancreatic juice on act। इसमें pancreatic juice भी एक्ट होता है। Billy salt split the large fat globules into the large number of small droplet। This process is called the emulsification of fat। मतलब फैट को डिसॉल्व करने का काम करता है। which provide the much larger surface area exposed for the action of lipase enzyme in act on fat। और फिर उसके ऊपर वहां पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को जो है सेपरेट करने का काम करता है। दूसरा पैनक्रियाटिक जूस यानी कि इंसुलिन, वो क्या फंक्शन करता है उसके बारे में देखते हैं। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड फ्लो थ्रू द पैनक्रियाटिक ductless into the common billy duct which finally open into the duodenum। The pancreatic juice contain the alkaline inorganic salt and which is enzyme amylase, trypsin and lapsin। ये तीनों के तीनों अलग अलग एंजाइम्स हैं, इनको जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है। These enzymes can act in alkaline medium। Amylase digest starch, trypsin digest protein and lapsin digest aminosaccharide। याद रखना कौन कौन किसको डाइजेस्ट करता है। देखो एमेलाइज जो है वो स्टार्च को जो है डाइजेस्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्राइप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लिप्सिन जो है एंजाइम वो जो है फैट वगैरह को जो है डाइजेस्ट करेगा। अब है इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। द इंटेस्टाइनल ग्लैंड लोकेटेड इन द म्यूकोसा lining the lumen of the small intestine are unicellular gland and secreted the intestinal juices। These juices are alkaline and contain the following enzymes: peptidates,
that convert the proteinous food component into amino acid. Carbohydrates such as sucrase and convert into the glucose and fructose, ये दो टाइप की शुगर में उसको कन्वर्ट करता है. And maltase that convert the maltose into glucose and lactose that convert the lactose into glucose and glycose. The lipsin that convert the fat into fatty acid. Okay, and like that way the entire digestion process is completed. And how it is completed till the end that I explain you. और उसके बाद में फूड जो है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. अभी भी उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव, खास करके वाटर एंड सॉल्ट होता है. लार्ज इंटेस्टाइन उन सबको ऑब्जर्व करता है और उसके बाद में जो है वो पूरा अनडाइजेस्ट जो फूड है वो रेक्टम में यहाँ पे आता है और वहां से जो है फिर वो बॉडी से बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है. लाइक दैट वे द एंटायर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन आई एक्सप्लेन यू इन वेरी डिटेल. कुछ भी पॉइंट मैंने बाकी नहीं रखे. आपके बुक में तो इससे आधा भी नहीं दिया हुआ है. जब आप इन सबको उसके साथ कंपेयर करोगे देन यू विल गेट द आइडिया कि सो ब्रॉड वे आई एक्सप्लेन यू दिस एंटायर कंसेप्ट. ओके, बाय.